The question is, give reasons in one or two sentences. The statement is, anhydrous HCl is a bad conductor of electricity, but aqueous HCl is a good conductor of electricity. Right. So there's one thing that for conductivity, ions are important, right? Now, due to the presence of free ions, conductivity can take place. A substance can be a good conductor or bad conductor depending upon the ions that it has. Okay, so there has to be some charge carriers to show the property of conductivity, right? So if we talk about anhydrous HCl, right? If we talk about anhydrous HCl, it is not ionized. Okay, it is not ionized, it does not dissociate into ions, so no charge carriers are available in the case of anhydrous HCl, right? Therefore it is a bad conductor, right? Therefore it is considered as a bad conductor because it is not ionized, there are no charge carriers, and therefore it cannot act as a good conductor, right? But if we talk about aqueous HCl, right, so aqueous HCl basically dissociates to give H plus and Cl minus ions in the solution, right? So basically this is fully ionized, right? This is fully ionized, and as it is fully ionized, charge carriers are available, and as the charge carriers are available, it can conduct electricity, right? It can conduct electricity and act as a very good conductor of electricity. Therefore, anhydrous HCl is a bad conductor, whereas aqueous HCl is a good conductor of electricity, right? Why? Because it is completely dissociated into ions, right? It completely dissociates into ions, and therefore it can conduct electricity and act as a good conductor, right? That's all for the question. तो हमारा क्वेश्चन है द कंडक्टेंस ऑफ 0.0015 m aqueous solution of a weak monobasic acid was determined by using a conductivity cell consisting of platinized electrodes. The distance between electrodes is 120 cm with an area of cross section of 1 cm square. The conductance of this solution was found to be 5 into 10 to the power minus 7 Siemens. The pH of solution is 4. Calculate value of limiting molar conductivity. तो देखो हमें क्या क्या गिवन है, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है. तो गिवन क्या क्या हमें, एल की वैल्यू दी हुई है, डिस्टेंस सेपरेशन इलेक्ट्रोड कितने डिस्टेंस से सेपरेटेड है उसकी वैल्यू दी हुई है 120 सेंटीमीटर. देन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए दी हुई है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड हमें मोलारिटी की वैल्यू दी हुई है m इज इक्वल टू 0.0015. तो देखो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से सेल कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेल कांस्टेंट L अपॉन ए होता है. L अपॉन ए इज इक्वल टू 120 सेंटीमीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मीन्स 120 सेंटीमीटर इनवर्स. ये हो गया हमारा सेल कांस्टेंट का वैल्यू. एंड हमें दिया हुआ है यहाँ पे कंडक्टेंस ऑफ दिस सॉल्यूशन, कंडक्टेंस की भी वैल्यू दी हुई है. तो यहाँ से स्पेसिफिक कंडक्टेंस की वैल्यू निकालते हैं. तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज इक्वल टू कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट. तो देखो कंडक्टेंस हमें कितना दिया हुआ है, 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 ओम इनवर्स इंटू सेल कांस्टेंट की वैल्यू क्या है 120 सेंटीमीटर इनवर्स. दैट इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स. ए के की वैल्यू दी हुई है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस की वैल्यू. अब देखो स्पेसिफिक कंडक्टेंस हमें मिल गया एंड सेल कांस्टेंट हमें मिला हुआ है. मोलर कंडक्टेंस हम निकाल सकते हैं. मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज मोलर वॉल्यूम. मोलर वॉल्यूम क्या होता है,
वैसा वॉल्यूम जिसमें 1 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट हो। तो देखो मोलारिटी दी हुई है 0.0015 मीन्स 0.0015 मोल ऑफ सॉल्यूट is present in 1 liter of solution means 1000 cc of solution। तो 1 मोल ऑफ सॉल्यूट कितने लीटर वॉल्यूम में प्रेजेंट होगा, कितने सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में प्रेजेंट होगा अपॉन 0.0015 मोल। तो देखो ये हो गया हमारे मोलर वॉल्यूम 1000 सेंटीमीटर क्यूब अपॉन 0.0015 मोल, है ना। तो यहाँ से मोलर कंडक्टेंस हमें मिल जाएगा। के की वैल्यू आ गई 6 × 10⁻⁵ ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स इंटू 1000 सेंटीमीटर क्यूब अपॉन 0.0015 मोल। तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी, मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू आ जाएगी 40 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ये हो गया मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू। और हमें इसके बाद क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू फाइंड करनी है, मीन्स निकालना क्या है हमें, मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनिटी डाइल्यूशन। तो देख मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनिटी डाइल्यूशन इज इक्वल टू व्हाट, यही हमें फाइंड करना है। तो देखो हमें क्या दिया हुआ है, पीएच ऑफ सॉल्यूशन। पीएच क्या होता है, माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस, है ना। तो यहाँ से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 10⁻⁻⁴, क्योंकि pH 4 दिया हुआ था। तो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर, है ना। देन देखो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस क्या होता है, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है कॉन्सेंट्रेशन इनटू अल्फ़ा। तो यहाँ से देखो अल्फ़ा की वैल्यू हमें मिल जाएगी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस अपॉन C मीन्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो अल्फ़ा की वैल्यू हो जाएगी 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर अपॉन C की वैल्यू क्या है, C की वैल्यू दी हुई है 0.0015 0.0015, ये हो जाएगा मोल पर लीटर। तो अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 1/15, है ना। अब देखो अल्फ़ा का दूसरा तरीका होता है निकालने का। अल्फ़ा निकालने के लिए हम कैसे निकालते हैं, मोलर कंडक्टेंस एट गिवन कॉन्सेंट्रेशन, है ना, अपॉन मोलर कंडक्टेंस ऑन इन्फिनिटी डाइल्यूशन। तो यहाँ से मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनिटी डाइल्यूशन हम निकाल सकते हैं मोलर कंडक्टेंस एट गिवन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन अल्फ़ा। तो देखो ये मोलर कंडक्टेंस हमने निकाला, कितना वैल्यू आया था 40। तो देखो 40 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल अपॉन अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी, अल्फ़ा की वैल्यू है 1/15। तो यहाँ से मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनिटी डाइल्यूशन आ जाएगा 600 ओम सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो यही हमें फाइंड करना था।